بھیڑیا اور 7 بچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کالے جنگل کے نزدیک ایک بکری ماں ایک چھوٹے سے پیارے گھر میں اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دفعہ بکریوں میں لڑائی کا مقابلہ ہوا اور کالے جنگل میں سے بکریاں مقابلے کے لیے آئیں۔ اور گرینڈ بلی پھر سے جیت گیا ہے۔ کیا یہاں کوئی ہے جو گرینڈ بلی کو مقابلہ دے سکے؟ اور یہ آئی مقابلہ دینے والی بڑے سینگ والی خاتون عظیم مارتھا۔ سر جوڑو، 1 2 3 لڑو۔ دونوں بکریاں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگی۔ گرینڈ بلی اماں بکری پر حاوی تھا، وہ اکھاڑے سے باہر گرنے والی تھی۔ آ جاؤ ماں، آ جاؤ، اسے ماں کی طاقت دکھاؤ۔ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے بعد ماں نے بڑی بکری کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور اسے اکھاڑے سے باہر پھینک دیا۔ مارتھا یہ لڑائی جیت چکی ہے۔ ووہو! تمام بچے ماں کے گرد اکٹھے ہوئے اور اس کو گلے سے لگایا۔ ماں، تم نے اسے دکھا دیا، ہورے! ایک چالاک بھیڑیا مجمع میں چھپا انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت سارے بچے، اتنا سارا کھانا۔ چلو بچوں چلے، میں نے گھر کا سامان لینے بازار جانا ہے۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ بھیڑیے نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ خاندان کہاں رہتا ہے۔ چلتے ہوئے ماں کو شک گزرا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے بھیڑیے کے قدموں کے نشان دیکھے۔ یہ چالاک بھیڑیا، مجھے ایک دن اسے سبق سکھانا ہے۔ جو ہی وہ گھر پہنچے، ماں کو کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے جانا تھا۔ میں سامان خریدنے باہر جا رہی ہوں، تم نے دروازہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولنا، مت بھولو۔ باہر ایک مکار بھیڑیا گھوم رہا ہے، وہ کالا ہے، اس کے پنجے خوفناک ہیں اور اس کی آواز گندی اور بھاری ہے۔ اگر کوئی کھٹکھٹائے دروازہ اچھی طرح بند رکھو۔ اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ الوداع ماما۔ الوداع ماما۔ اماں بکری بازار چلی گئی۔ ایک درخت کے پیچھے سے بھیڑیا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو اماں بکری، تم بازار جاؤ، میں اپنا خوابیدہ کھانا تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائے بغیر کھا جاؤں گا، سیدھا پیٹ میں نکلوں گا۔ پھر خود کو زیادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بھیڑیا بکری کے گھر کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا بھیس بدل لیا۔ دروازہ کھولو بچوں، میں واپس آ گئی ہوں۔ بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، یہ اماں ہیں، میں بازار سے واپس آ گئی ہوں، دروازہ کھولو۔ بچوں نے جب اس کی بھاری آواز سنی تو انہیں اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ ہم جانتے ہیں تم کون ہو، تم بھیڑیے ہو، ہماری ماں کی میٹھی پیاری آواز تمہارے جیسی بھاری گندی نہیں، چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیے نے غضبناک طریقے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بچے خوف سے تترا رہے تھے لیکن انہوں نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ پھر بھیڑیے کو ایک بات سوجی، وہ بیکری پر گیا اور اس نے ایک کیک اٹھا لیا جو شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ یہ سوچ کر کھایا کہ اس سے اس کی آواز میٹھی ہو جائے گی۔ اب میں اماں بکری کی طرح بول سکتا ہوں۔ بار بار وہ اماں بکری کی آواز کی نقل کرتا گیا۔ میں واپس آ گئی ہوں بچوں، میں واپس آ گئی ہوں۔ پھر وہ واپس 7 بچوں اور گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولو، میں نے ابھی اس بے وقوف بھیڑیے کو دیکھا ہے، وہ دریا پر مچھلی کھا رہا تھا۔ بکری بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا۔ جلدی کرو، دروازہ کھولو،
इस दफा बच्चों को कुछ शक था। उन्हें वो आवाज अपनी माँ जैसी लग रही थी और वो दरवाजा खोलने लगे थे कि साथ ही सबसे बड़े बच्चे ने कुछ अजीब बात देखी दरवाजे में से। रुको, तुम हमारी माँ नहीं, उसके इतने खौफनाक काले पंजे नहीं हैं। चले जाओ मक्कार भेड़िए। और एक दफा फिर अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भेड़िए ने दरवाजा बंद पाया। अब भेड़िए ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की, एक खिड़की से जो फर्श से कुछ ऊपर थी। भेड़िए ने आहिस्ता आहिस्ता ईंटें इकट्ठी करना शुरू की घर के अंदर दाखिल होने के लिए। बिलाखिर वो खिड़की तक पहुंच गया और उसने अपने आप को खिड़की में धकेला। हा 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 हा, तुम उस बेवकूफ बकरी के पागल बच्चे, अब मैं तुम्हें एक एक करके मार दूंगा। हे पागल भेड़िए, तुम अपने आप को बहुत तेज समझते हो, मगर अब देखो क्या होता है। बच्चों ने भेड़िए की तरफ बर्तन फेंकना शुरू कर दिया। भेड़िए को सर पर चोट आई और वो नीचे गिर गया। भेड़िए का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो चुका था। फिर उसने एक दरख्त का तना लिया और दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। इस दफा मैं हूँ भेड़िया, तुम्हारी माँ नहीं। चले जाओ यहाँ से। अब मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हा 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 हा। तमाम बच्चे इकट्ठे हुए और दरवाजे के साथ जुड़ गए। 4-5 दफा की कोशिश के बाद तना तो टूट गया, लेकिन दरवाजा वैसे ही था। कुछ गहरा सोचने के बाद भेड़िया चक्की पर गया और उसे एक आटे की बोरी मिली। उसने अपने पंजे उसमें धंसाए तो वो पंजे सफेद हो गए। भेड़िया वापस बकरी के घर की तरफ लौटा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार बकरी बच्चों ने एक दूसरे को देखा मगर दरवाजा नहीं खोला। ओह, तुम सोच रहे हो कि मैं भेड़िया हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए बाजार से तोहफा लाई हूँ। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो। वो आवाज माँ की जैसी थी, तो सबसे छोटे बच्चे ने दरवाजे के नीचे से छुपकर देखा। इसके पाँव तो सफेद हैं, ये हमारी माँ है, दरवाजा खोलो। बच्चों को अब यकीन हो गया। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें देखकर धचका लगा। इतने बड़े दांत और इतना बड़ा जबड़ा गुस्से से वो रहा था। अब तुम सब जल्द मेरे पेट के अंदर होगे, मत रो मेरे मजेदार खाने। बच्चे दहशत से भागे। एक मेज के नीचे गया, दूसरा बिस्तर के नीचे चला गया, एक ने अलमारी में खुद को बंद किया और एक चूल्हे में चला गया और एक सुराख के अंदर बैठ गया। सबसे छोटे वाला दादा की घड़ी में जाकर छुप गया। तुम छुपन छुपाई खेलना चाहते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें निगलूं। एक एक करके छुपे हुए बच्चों को भेड़िए ने बाहर निकाला। वो मक्कार भेड़िया उन्हें एक ही नवाले में निगलता गया। सिर्फ एक जो फरार हो सका वो छोटा काला बच्चा था, क्योंकि भेड़िए ने कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया कि दादा की तंग घड़ी में एक बच्चा छुप भी सकता है। और क्या मजेदार खाना था, ताजे बकरे। भेड़िया फौरन घर छोड़कर भागा। मां के आने का वक्त हो चुका था। जल्द ही अम्मा बकरी बाजार से वापस लौटी। कुछ फासले से उसने घर का दरवाजा खुला देखा तो वो घर की तरफ भागी और उसका खदशा जाहिर हो चुका था। बर्तन टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, पूरा घर बर्बाद हुआ था और बच्चों का कोई नामो निशान न था। माँ जैसे कुर्सी के ऊपर गिर सी गई और रोने लगी। जब वो रो रही थी तो दादा की घड़ी का दरवाजा खुला और वो काला बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आया। अम्मी अम्मी। माँ ने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाया और रोने लगी। मेरे खुदा, ये क्या हो गया? तुम्हारे दूसरे बहन भाई कहाँ है? ये बहुत बुरा हुआ। भेड़िया आया और मेरे सब बहन भाइयों को खा गया। मगर मैंने तुम सबको बोला था कि दरवाजा नहीं खोलना, और कैसे पता लगेगा कि ये भेड़िया है या नहीं? बच्चे ने उसे पूरी कहानी सुनाई और भेड़िए की बुरी चालों के बारे में बताया।
मत रो मेरे प्यारे भेड़िए, तुमने मेरे मासूम बच्चों को धोखा दिया। अब मैं इस बुरे भेड़िए की कहानी खत्म कर दूंगी। चलो इसे ढूंढ निकालते हैं। अम्मा बकरी और उसका बच्चा घर छोड़ के निकले भेड़िए को ढूंढने के लिए। अम्मा बकरी को खरखराहट की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत जोर से खराटे ले रहा था। ये वो लालची भेड़िया था। बच्चों का खाना इतना भारी था कि वो बहुत गहरी नींद सो चुका था, जैसे वो दुनिया के लिए मर चुका हो। एक झटके में अम्मा बकरी को एक ख्याल आया। अम्मा बकरी ने एक सुई, धागा और कैंची ली। इससे उसने भेड़िए के पेट को काट डाला और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इस जालिम ने उसके तमाम बच्चों को साबुत निगल लिया था। छोटा बच्चा अपने बाकी के बहन भाइयों को देखकर खुशी से कूदने लगा। अरे तुम मेहरबानी करके खामोश रहो, वरना तुम भेड़िए को जगा दोगे। एक एक करके वो भेड़िए के पेट में से बाहर निकलना शुरू हो गए। जल्दी जल्दी आवाज नहीं निकालनी, इससे पहले कि वो जागे। हमें निकल जाना चाहिए। बिलाखिर तमाम बच्चे बाहिफाजत बाहर आ गए। ठीक है, अब मैं इसको सी देती हूँ। रुको, मुझे पत्थरों का ढेर ला दो। और फिर उन्होंने भेड़िए के पेट को पत्थरों से भर दिया और उसे सी दिया। भेड़िया एक जोरदार भूख से जागा और उसने अपना भारी पेट देखा। ये बच्चे हजम होने में बहुत वक्त ले रहे हैं। मुझे तो अब प्यास लगी है। भेड़िया दरिया की तरफ चल पड़ा। वो इतना वजनी हो गया था कि उसके लिए पाँव उठाना मुश्किल हो रहा था। इतना भारी पेट है मेरा। मुझे बहुत प्यास लगी है। पर जब वो दरिया पर पहुंचा पानी पीने के लिए, तो उसके वजनी पेट ने उसको उल्टा कर दिया और वो पानी में गिर गया। अम्मा बकरी और बच्चे पानी पर पहुंचे। भेड़िया तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेट में पत्थर होने की वजह से वो डूबता गया और डूब गया। तमाम बच्चे और अम्मा उसे देखकर हंस रहे थे। वो मकार भेड़िया मर चुका था और बच्चे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी घर लौट गए।